Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So I welcome you in the another episode or part of this chapter 12, Reproduction in Plants, class 7th NCERT. Right, in previous video what we discussed about fertilization, and now we'll discuss about zygote, how it formed when male gametes and female gametes combine together or fuse together, they form zygote. Zygote is a single cell. ये हमने डिस्कस किया, राइट. दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, राइट. ये हमने कर लिया कवर. अब हम देखते हैं हाउ फ्रॉम दैट फर्टिलाइजेशन, फ्रॉम दैट zygote फ्रूट इज फॉर्म. ओके, flower is formed and then fruit is formed. So let's check out. Okay, so fruits and seed formation. Now this is the ultimate step. After sexual reproduction, what happened? All the petals, all the sepals and all the other stamen, style, all these parts dry up and fall off. Okay, what left is fruit. Okay, and I already mentioned in previous video, fruit is what? That the edible part of the fruit is ovary that we had. Okay, and ovule is what? Ovule is the seeds. Okay, so significance of fruit. First thing हम देखते हैं fruits के significance क्या है. What is the meaning of significance? Significance mean importance. What is the importance of fruit and what is the importance of seed? These, if you understand the importance, then you will able to write answer in your own words. Okay, so significance of fruit. Fruit protect the seed. As I already told you many times, seeds need and favorable condition or favorable environment for the growth of new plant. Until then, that edible part, that ovary protects the seeds. Okay, so this is the, see, this is apple. So in apple, as you know, there are seeds inside, black color seeds, right? And this is the ovary. Actually, this ovary, what is doing? It is protecting the seeds. Okay. Second thing, fruit are a source of energy. This is the edible part. We can eat and we'll get energy. As we already know, an apple a day keeps doctor away. So one apple a day you must have. Okay. Next is fruits help in dispersal of seeds. अब you said what is dispersal? Dispersal means scatter होना, फैलाना. Okay, seeds को फैलाने में fruits help करते हैं. See, this apple, like imagine I'm a monkey. Okay, a monkey. I'm eating this apple. Okay, and I'm climbing from one tree to another tree. Then what happened? Then I eat the apple and throw the seeds or whatever at very far away from my home. Like from my tree where I live. So what happened? Because of fruit, the seeds disperse or scatter here and there. So that after a few years, a new apple tree were grown over that place also. So this is how nature disperses its seeds. Okay. So all these are the significance of fruit. Now we're going to discuss significance of seeds. First is seed contain an embryo. Seeds के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है. मैंने आपको ये पहले भी बताया है, सीड्स के अंदर एम्ब्रियो होता है एंड एम्ब्रियो के अंदर कैपेबिलिटी होती है बिल्कुल न्यू फ्रेश प्लांट और ट्री को ग्रो करने की. ओके, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर मेल कैरेक्टर्स भी हैं, मेल गैमीट के एंड फीमेल के भी कैरेक्टर हैं. हम भी जो बनते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जब हमारे पेरेंट के मेल पापा के सेल्स एंड मदर सेल्स आपस में कंबाइंड होते हैं, व्हाट दे फॉर्म? zygote. zygote इज अ सिंगल सेल. तो हमारी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है? सिंगल सेल से. देन डिवाइड कर करके हम एम्ब्रियो बनते हैं एंड देन आफ्टर 9 months अ बेबी इज फॉर्म्ड. सो दिस इज अ wholesome process that happen in animals also and plants also. That's why we call it sexual reproduction, because in this reproduction we require both the parents of opposite sex. Okay, so ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बताया. नेक्स्ट, सीड कवर्ड और प्रोटेक्टेड बाय सीड कोट. सीड होती है, सीड के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं. ओके, मैनी सीड्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी. सीड्स को भी हम खाते हैं. सीड्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसे आप किसी भी सीड्स का नाम लो, जो सारी दालें हैं हमारी, वो क्या है? सीड्स हैं. दाल के अंदर जैसे आप राजमा है, राजमा के अंदर जो सीड है वो क्या है? एक्चुअली में एम्ब्रियो है और उसके ऊपर सीड कोट है. तो हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी भी है. प्रोटीन है उसके अंदर काफ़ी, राइट. तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ है, बट प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसलिए हम कहते हैं प्रोटीन सोर्स है, सोर्स ऑफ प्रोटीन है, राइट. सो ये हमने सीड के बारे में देखा, मैंने आपको फ्रूट्स के बारे में बताया. अब हम फ्रूट्स के बारे में कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं. फ्रूट क्या एक्चुअली में? मैच्योर ओवरी है. ओके, ओवरी अपने आप को मैच्योर करना स्टार्ट करती है एंड अपने ऊपर जो भी एडिबल पार्ट है वो इकट्ठा करती है. ओके, सीड के लिए, सीड की प्रोटेक्शन के लिए एंड जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है तब तक सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी. ओके. सेकेंड थिंग,
जो सीड्स होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वो ड्राई भी, फ्लैशी भी होते हैं। जैसे ये एप्पल है, ये फ्लैशी है, इसके अंदर वाटर है, ओके। एंड इन द सेम वे अगर मैं आपको दिखाऊं वॉलनट, सी ये वॉलनट है, ये वॉलनट ड्राई है, तभी हम इनको क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। वॉलनट ले लो आप, ग्रेप्स ले लो, आलमंड ले लो, ये सब क्या है, ये फ्रूट्स हैं, बट ये ड्राई फॉर्म में है, इनके अंदर वाटर कंटेंट बहुत कम है, ओके। सो ये आपने देखा फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। सीड्स क्या एक्चुअली में मेच्योर क्या है, मेच्योर ओव्यूल्स है, मेच्योर ओव्यूल्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं, ओके। सो ये हमने पूरा फ्रूट्स और सीड फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिस्पर्जल के बारे में, कि सीड्स को और किस तरीके से डिस्पर्स किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं सीड डिस्पर्जल के बारे में, ओके। सीड डिस्पर्जल क्या मतलब क्या है, मैंने आपको भी बताया था, स्कैटरिंग ऑफ सीड का फैलना, राइट। ये क्यों हमें अलग से स्टडी करना है, बिकॉज जो सीड्स का डिस्पर्जल है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम चेक करते हैं। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सीड डिस्पर्जल के लिए, वो क्या है, ओवर क्राउडिंग स्टॉप करता है। अगर एप्पल के ट्रीज बहुत साथ साथ पास पास एक ही जगह पर उग जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सबको एक तरीके का न्यूट्रिएंट चाहिए फ्रॉम सॉइल से, तो वो जो न्यूट्रिएंट है पर्टिकुलर, वो सॉइल से क्या हो जाएगा, डेफिशिएट हो जाएगा। बट अगर हम दूर दूर लगाएंगे और उनके बीच में और टाइप के भी प्लांट्स हैं, तो आपको पता है कि हर एक प्लांट को अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए फ्रॉम सॉइल, तो इससे क्या होगा, ओवर क्राउडिंग स्टॉप होगी, राइट। न्यूट्रिएंट कॉम्पिटिशन भी कम होगा ऐसे, राइट। थर्ड चीज़ क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा वाइडर एरिया में। एप्पल ट्रीज, ठीक है, मैंगो ट्रीज, बनाना ट्रीज एंड नीम, अशोक, पीपल ट्री, ये सब आपको दिखेंगे, राइट। तो क्यों हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हमने वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन किया नेचर ने, उसकी वजह से। आप ये डिफरेंस बहुत आराम से नोटिस भी कर सकते हो। आप कभी भी पार्क में जाओगे, आप देखोगे जो भी ह्यूमन ने जो ट्री लगाए होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलाइंड होते हैं और एक ही टाइप के ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। बट जब नेचर में आप जाओगे तो आप देखोगे अलग अलग टाइप के ट्रीज़ हैं, उन पे आपको क्रीपर्स भी मिलेंगे, क्लाइंबर्स भी मिलेंगे, ओके, ग्रास भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिटी है, वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप का, हर ट्री डिफरेंट होगा, कोई भी सेम नहीं होंगे, राइट। सो ये नेचर ने किसी को भी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता नेचर, राइट। सबको इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अब हम सीड का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे विंड की हेल्प से, कि विंड की हेल्प से सीड कैसे डिस्पर्स होती है अराउंड दी वर्ल्ड, ओके। सो विंड के से डिस्पर्जल करना है हमें। फर्स्ट है कि सीड के पास विंग है, ओके, विंग्ड सीड्स है, तो क्या होगा, विंग स्ट्रक्चर होगा उसका। एंड उसमें क्या होगा, एग्जाम्पल्स क्या हैं उसके, ड्रम स्टिक, आप मेरे साइड में ड्रम स्टिक सीड की पिक्चर देखो, आपको दिख रहे हैं विंग्स हैं, ओके। मेपल की पिक्चर देखो आप मेरे साइड में, उसमें भी विंग्स हैं, ओके। तो ये विंग्ड सीड्स के एग्जाम्पल हैं, ओके। विंग की हेल्प से ये विंड में आराम से उड़ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, स्मॉल एंड लाइट सीड। स्मॉल एंड लाइट सीड मतलब क्या है, वेरी लाइट है और आराम से विंड के थ्रू उड़ सकती है, ओके, फ्लो कर सकती है। तो ये ग्रास सीड्स, आप मेरे साइड में ग्रास की सीड्स देखो, आपको दिखेगा वो एकदम हल्की लग रही है, बहुत देखने में लाइट लग रही हैं, तो वो आराम से विंड में फ्लो कर सकती हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, हेयरी सीड्स और फ्रूट्स। सीड्स क्या है, हेयरी हैं, तो उसमें क्या होगा, हेयर होंगे, सीड्स के पास हेयर्स हैं, ठीक है, जिससे वो आराम से विंड के साथ ब्लो करके कहीं पे भी लैंड हो जाए एंड वहाँ पे न्यू प्लांट ग्रो करे, ओके। एग्जाम्पल जैसे आक सीड की पिक्चर देखो आप मेरे साइड में, सनफ्लावर सीड की पिक्चर देखो आप मेरे साइड में। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, डिस्पर्जल मैकेनिज्म बाय विंड के, ओके। अब हम आगे डिस्कस करते हैं फर्दर वाटर से एंड एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्जन कैसे होता है। अब हम कुछ और नए मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, जैसे कि वाटर, एनिमल्स, ठीक है, और कुछ स्पेशल मैकेनिज्म कुछ एनिमल्स शो करते हैं, कुछ प्लांट शो करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने सीड्स को डिस्पर्स कर पाते हैं, ओके। सो फर्स्ट है हमारे पास वाटर की हेल्प से सीड कैसे डिस्पर्स होगी। वाटर में क्या है, वो स्पॉन्जी होते हैं थोड़े, जो वाले वाटर से जो फ्लो करते हैं, ओके, फाइबरस होते हैं, उसकी वजह से वो स्पॉन्ज होता है, तो अपने अंदर एयर ट्रैप कर लेते हैं। आपको पता है ना, किसी भी चीज़ में हम एयर ट्रैप कर देते हैं तो बहुत हल्की हो जाती है चीज़, राइट। तो फिर वो बहुत लाइट हो जाते हैं और आराम से वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, कोकोनट सीड्स, आप मेरे साइड में कोकोनट सीड की पिक्चर देखो, राइट। वाटर लिली की पिक्चर देखो, आपको दिख रही है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, वाटर के, ये वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल्स के थ्रू कैसे डिस्पर्स होते हैं। जो भी प्लांट्स अपनी सीड्स को एनिमल के थ्रू डिस्पर्स करते हैं, वो एक्चुअली में क्या होता है, उनके पास थोड़े स्पाइनी, थोड़े कांटे होते हैं, हुक्स होते हैं, ताकि वो उनके विंग्स पे, उनकी बॉडी पे अटैच हो जाए, ओके। एंड फिर वो जहाँ पे भी वो दोबारा जाके लैंड करे, वहाँ पर वो क्या हो जाए, उनकी बॉडी से गिर जाए, ओके। सो दिस इज हाउ एनिमल्स के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने सीड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्पर्स करते हैं, ओके। एग्जाम्पल हो गया ज़ैंथियम, आप मेरे साइड में ज़ैंथियम की पिक्चर देखो, ज़ैंथियम सीड्स की, ओके। और यूरेना प्लांट है, उसकी सीड्स की पिक्चर देखो, तो इनके पास क्या है, हुक्स हैं, सो दैट
ये एनिमल पे अटैच हो जाएं एंड देन अप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये अपने आप को डिस्पर्स करें और स्कैटर कर पाएँ, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अब हम कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत स्पेशल मैकेनिज्म शो करते हैं। वो स्पेशल मैकेनिज्म कैसा है कि वो अपने फ्रूट को बर्स्ट करते हैं विद अ जर्क, मतलब झटके से वो अपने फ्रूट को बर्स्ट करते हैं ताकि उसके अंदर जो सीड है वो जब झटका लगे उस पर तो वो दूर तक जाके गिरे। ओके, सो दिस इज हाउ दे शो dispersal, okay, do or maybe do themselves dispersal of their seeds on their own. Okay, so ये एक बहुत ही स्पेशल मैकेनिज्म है। ये आपको किस में दिखेगा? कैस्टर में दिखेगा। कैस्टर सीड्स आप देखो, कैस्टर फ्रूट देखो आप पूरा, मैं आपको पिक्चर दिखाई है मैंने, वो उसमें बर्स्ट हो रहा है, वो बर्स्ट होता है उसके अंदर से सीड जर्क लगता है सीड को एंड वो दूर दूर तक जाके फिर गिरती है। ओके, नेक्स्ट आप पिक्चर देखो मेरे पास सीड की, बैल्सम प्लांट है, उसकी सीड्स की पिक्चर देखो, राइट। तो ये क्या शो करते हैं? स्पेशल मैकेनिज्म शो करते हैं, फ्रूट को बर्स्ट करते हैं विद सडन जर्क। तो ये हमने डिस्पोजल जो हमारे सीड डिस्पोजल था ये डिस्कस किया। अलग अलग प्लांट्स अलग अलग टाइप के जो डिस्पोजल मीडियम्स हैं उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं डिस्पोजल में, और कैसे वो अपने सीड्स को दूर दूर तक स्कैटर कर पा रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, राइट। तो अब हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड कीवर्ड डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।